بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، کولیسٹرول کی زیادتی، ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، فالج کو ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ انجیکشن لگوا لیں ریکوری ہو جاتی ہے۔ اب جب رائٹ سائڈ پہ فالج ہوگا تو آپ کے لیفٹ سائڈ کے اس حصے میں کلوڈ آئے گا۔ 500 mg کے کیپسول بھر کے نا صرف اور صرف 1 سے 1.5 ماہ کھا لیں، اک کے پتے کو لے کے نا تلوں کا تیل مالش کریں تو اس سے انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ صحت کے انتہائی اہم مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ فالج آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دنیا بھر میں فالج کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں ہر سال 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو نشانہ بناتا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ فالج سے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ مگر پاکستان میں صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہاں نوجوان خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں، ان میں زیادہ رسک پایا جاتا ہے، اور ہر 5 میں سے 1 خاتون کو فالج کا خطرہ، اور فالج سے انتقال کرنے والوں میں آدھے سے زیادہ خواتین ہیں، اور آبادی کا تقریباً 5% حصہ فالج کے اثرات کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتا ہے۔ یعنی 10 لاکھ سے زائد پاکستانی کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ جی رہے ہیں، اور سچ یہ بھی ہے کہ صرف پاکستان میں ہر سال 4 لاکھ لوگ فالج کے باعث جان سے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ اکثر لوگوں کو فالج کی ابتدائی علامات اور بچاؤ کے طریقوں کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ فالج کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے کس طرح سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ہربل علاج کیا ہے، اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر طب پروفیسر حافظ فرحان حنیف صاحب۔ فرحان صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر، سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا یہ فالج ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور بنیادی میکانزم اس کا کیا ہے اور کس طرح سے یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، اس میں جو آج کل زیادہ پیشنٹ ہونے کی وجہ شوگر، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، کولیسٹرول کی زیادتی، ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، اس سے کیا ہوتا ہے خون ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات فالج کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اگر فوری طور پہ سمجھ آ جائے تو فوری طور پہ اس کا علاج بڑا آسان ہے کہ اگر فالج ہوا ہے تو فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیا جائے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نا فوری طور پہ اس کا علاج نہیں کروا پاتے۔ اب تو ایسے وہ سینٹر بھی موجود ہیں کہ آپ فوری طور پہ جا کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ انجیکشن لگوا لیں تو اس سے الحمدللہ ریکوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایسا سینٹر نہیں قریب تو آپ کسی بھی اچھے طبیب کے پاس لے جائیں تو فوری طور پہ اس کا علاج آسان ہے اور ممکن ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز کئی موجود ہیں الحمدللہ جنہیں فالج ہوا پہلے دن الحمدللہ ریکور ہو گئے۔ اس میں سب سے زیادہ جو فالج آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ رائٹ سائڈ کا، ویسے تو ایک رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے، ایک لیفٹ سائڈ کا ہوتا ہے، ایک نچلے پورشن کا۔ اب جب رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے اس میں بی پی اکثر لوگوں کا جیسے ہی 200 پلس کراس کرتا ہے تو بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ فالج نہ ہو، زیادہ تر فالج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ فالج، اب جب رائٹ سائڈ پہ فالج ہوگا تو آپ کے لیفٹ سائڈ کے اس حصے میں کلوڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیسیکلی تو دماغی مرض ہے، جیسے ہی خون کا لوتھڑا کلوڈ وہاں پہ رکے گا ویسے ہی بلاکیج آئے گی، ویسے ہی فالج ہو جائے گا۔ اب جب رائٹ سائڈ کا فالج ہو اس کو پہلے سمجھ لیں، اس کا بڑا آسان سا حل ہے۔ اگر آپ کو سٹارٹ ہوا ہے سب سے پہلے ہلکی سی شیورنگ سٹارٹ ہوگی، نمنس آنی شروع ہو جائے گی اور بلڈ پریشر آپ کا شوٹ کرتا جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی بلڈ پریشر شوٹ ہوا آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کا بازو جو ہے وہ شیورنگ ہلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ فوری طور پہ اگر آپ کے قریب شربت سندل ہے وہ پی لیں، یا جوارش شاہی ایک معجون ہے کسی بھی کمپنی کی لے کے فوراً 1 چمچ کھا لیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو ٹھنڈا دودھ پی لیں۔ اگر میرے پاس ایک دفعہ ایسا بھی واقعہ آیا، میں کسی جنازے میں تھا تو وہاں پہ کوئی اور چیز تو میسر نہیں تھی، تو ایک ساتھی اس کا ایسے ہاتھ کریے، میں نے کہا آپ کا بلڈ پریشر ہائی تو نہیں رہتا؟ کہتا رہتا ہے۔ میں کہا فوراً آؤ۔ اب اس کا طبیعت بڑھتی جا رہی، کہتا ہے یہ ایسا جیسے کام کرنا چھوڑتا جا رہا ہے۔ تو میں فوراً ساتھ، میں نے کہا چلو میں ساتھ اس کے گیا، فوراً دکان سے ایپل کا جوس لے کے وہی پلایا، ٹھیک 5 منٹ بعد اس کا بازو بھی ٹھیک ہوگا اور اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ حالانکہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہیں پہ میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ تو چلیں چیزیں وغیرہ جو دستیاب تھیں، اب ہمارے پاس تو کافی زیادہ چیزیں ہیں۔ اس میں اگر رائٹ سائڈ کا فالج ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ چھوٹی یہ ہے جی کالی مرچ اور یہ ہے چھوٹی چندن، اسرول بھی کہا جاتا ہے اسے،
ये है संदल सफ़ेद। 3 चीज़ें इसका फाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम दिया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो इससे फिर जो है ना फालिज का खतरा नहीं रहेगा, फालिज से आप बच जाएंगे। तो ये अगर साथ इस्तेमाल करते जाएं तो फौरी तौर पे अफाका है। अगर फालिज हो गया है, अब उसमें भी राइट साइड का फालिज अब हो गया, अब उसमें भी 2 मसाइल है। एक होता है जिसमें हाथ ऐसे अकड़ाव में होता है, तशन्नुज, ऐसे हाथ रखेगा। अब ये अकड़ाव है, बेसिकली तशन्नुज का इलाज करेंगे। अकड़ाव खत्म करने के लिए ऐसी चीजें देंगे तो अकड़ाव खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक फालिज होता है जिसमें लटक जाता है। आप किसी को कहें ना 100 रुपए का नोट पकड़ लो तो वो नहीं पकड़ सकता, उसका क्योंकि हाथ ऐसे लटका होता है, बाजू भी वो चल भी नहीं पाता। हाँ जी। और जब भी राइट साइड का फालिज जो उसे चेक करना हो तो इसमें आप जब भी कोई इसे चुटकी काटेंगे उसे महसूस ही नहीं होगा। और राइट साइड वाले फालिज में ही जुबान भी आपकी बोलने से भी आप चले जाते हैं। बाज़ दफा सब ये खवातीन में इतना रिस्क क्यों, खवातीन की तादाद क्यों? अच्छा, इसमें ना 2-4 चीजें। एक तो आप फिट रहना चाहते हैं ना, तो कुरान का फैसला है इंसान को पैदा किया मशक्कत के लिए। तो आप जो लोग खाना खाया वहीं पे बैठ गए। एक तो सबसे पहले अपना खाना, जैसे हमारे पहले दौर में हुआ करता था कि पहले तो सिस्टम था कि वो तवी होती थी, साथ बैठ के वालदा ने सबको खाना खिलाना। अब भी हमें चाहिए कि हम खाना जाके किचन के करीब या कहीं खाएं। बिस अक्सर आप क्या हो रहा है, बिस्तर के ऊपर ही खाना खाया, वहीं पे मोबाइल देखा, वहीं पे सो गए। यानी कि हम ना रेस्ट बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर अलकस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और इसमें वर्जिश ना करने वाले लोग फंसते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको आप देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल फालिज हो। अगर आप जमींदार तबका देखें गांव में तो औरतें ज़मीनों का काम भी करती हैं, घर का काम भी, और बड़े बड़े घर होते हैं, उनको फालिज जल्दी नहीं होता। तो इसमें सबसे पहला काम तो। दूसरा डिप्रेशन, एंजाइटी। अब बाज़-औक़ात, और मेरे पास अभी भी जो पेशेंट आते हैं मैं कहता हूँ यार गुस्सा कम करो, अगर गुस्से को कंट्रोल करोगे तो ये ठीक होगा। ऐसे पेशेंट को अक्सर गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। और गुस्से में ज्यादातर जितने भी ऐसे पेशेंट आए उनको ज्यादातर गुस्से की हालत में ये पोजीशन आती है। टेंशन परेशानी ली या किसी बच्चे की। कि क्या क्या चीजें आप करते हैं जिसकी वजह से ऐसे तो जो ब्लड का क्लॉट बनता है, ये ना बने, इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपके तशन्नुज है, अकड़ाव है, तो उसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। ये 3 चीजें आपने ले लेनी है। इतना जबरदस्त रिजल्ट है। अगर आपके अकड़ाव है, बेशक जितना मर्जी पुराना है, आपका हाथ ऐसे ही है, तो उसके लिए ये तुम्मा ले लें 50 ग्राम, छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, गंधक आंवला सार ले लें 50 ग्राम। 500 mg के कैप्सूल भर के ना सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 माह खा लें। अल्लाह के हुक्म से आपका कड़ाव खत्म हो जाएगा और आप सही चलना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है जो मैंने कहा तहलील। कुछ चीज भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि हाथ उसके बंद ही नहीं होने, हाथ उसके रनिंग ऐसे, वो 100 का नोट पकड़ ही नहीं सकेगा। 500, 1000 जो मर्जी रख ले, आजमा के देख ले, नहीं पकड़ सकेगा क्योंकि उसका हाथ ऐसे होना ही नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए बड़ा आसान, बड़ा सादा सा नुस्खा है कि अगर ये 3 चीजें लेकर वो इस्तेमाल करे तो इससे 1 से 3 माह के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफा रब ने देनी है। रब से दुआ करे रोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे देगा। और फालिज वाले पेशेंट बड़े परेशान होते हैं बेचारे, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं, सोचते रहते हैं। एक बंदा चल के वाशरूम तक नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूँ तो ये दुश्मन के लिए भी इंसान को ना ये बददुआ नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये मर्ज ऐसा है कि इसमें इंसान सोच सोच के ही खत्म हो जाता है। सुरंजा शीरी ले लें 50 ग्राम, और जीरा सफेद ले लें 50 ग्राम, सही, और सुंड ले लें 50 ग्राम। अच्छा, नुस्खे देखिए मैंने जितने भी बता रहा हूँ बड़े सस्ते से और आम पंसार स्टोर से मिल जाते हैं। तीनों चीजों का फाइन पाउडर करके ना तो ये 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 3 माह में रिकवरी वापस हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, ये तो आपने बताया कि कुछ फालिज की भी ये अलामात हैं, अर्ली इंडिकेशंस हैं जो शो हो जाती हैं, मतलब हाथ जो है वो शिवर कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं हमारे वालिदैन जो बुजुर्ग हैं उनके हाथ जो हैं वो कांप रहे होते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा उतना ही मुफीद है या उनके लिए कोई और चीज है? उनके लिए वो होता है राशा। ठीक है। वो होता है राशा। राशा बीमारी और है। उसके लिए आंवला ले लें 50 ग्राम, भेड़ा ले लें 25 ग्राम, छिलके, सिर्फ छिलके गुठली निकाल के, और हरड़ ले लें 20 ग्राम, 25 ग्राम ही। तीनों का फाइन पाउडर कर लें और ये आधा चम्मच रोजाना शाम को दे दिया करें। और उसके साथ ना कोशिश करें देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त, फिश वगैरह, काले चने शोरबे वाले, ये वाले दें तो इससे बड़ी जल्दी रिकवरी शुरू हो जाती है, पट्टों में ताकत आती है। खजूर, इंजीर का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, यहाँ पे फालिज की बात चल रही थी तो ये तो हो गया राइट साइड। अब राइट साइड का जो फालिज है इसमें
वो कहता है ना कबूतर खवाओ, जंगली देसी कबूतर इसमें खिलाओ, नहीं हाँ। खिलाने। राइट साइड में आप ताकतवर चीज खिलाएंगे तो बीपी और शूट करेगा। यहाँ पे आपने सब्जियां देनी है, सब्जी के अंदर थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सा आप मटन या देसी चिकन डाल सकते हैं, लेकिन सब्जियां घिया, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे वगैरह, दलिया, जिनकी तासीर ठंडी है ये। ऐसी चीजें देनी है, ये ज्यादा जल्दी फौरन रिकवर हो जाएगा। लेफ्ट साइड का फालज जो है ये होता है बलगमी, बलगम की ज्यादती की वजह से लोगों का अक्सर बीपी लो रहता है, बहुत कम देखने में आएगा किसी का लो रहता है। कमजोरी, खुराक की कमी, अपना ध्यान ना रखना, ठंड में निकल जाना या गर्मी में आए ठंडे पानी से नहा लेना, तो ये ऐसी चीज़ों से होता है। तो इसके लिए होता है कि आप बकरे का गोश्त या कबूतर या देसी मुर्गी इस तरह की चीज़ें खाएं। इसका इलाज जो है, इसमें हरारत वाली चीज़ें खाएंगे। जब भी लेफ्ट साइड का फालिज होता है तो क्लॉट जो है वो राइट साइड में आता है, राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में क्लॉट होता है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, बड़ा सादा सा नुस्खा है, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है अजराकी, इनके ये बटन से टाइप होते हैं। इनको पहले थोड़ा सा ना ब्रियां करेंगे, फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा देसी घी डाल के ना ब्रियां करें और गरम गरम ही कूट लें। ठंडे हो गए तो ये चिड़े हो जाते हैं, जरा ये कूटे नहीं जाते फिर। ठीक है। गरम गरम कूट लिया, फिर इसको पाउडर कर लें, वो कूट के बारीक हो गया जरा। उसके बाद आगे ये मगा, ठीक है, ये इसको फिलफिल दराज भी कहा जाता है, लंबी मिर्च भी कहा जाता है, ये भी ले लें। ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम। उसके बाद आ गई है काली मिर्च फिलफिल स्याह, ये भी 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम लेके फाइन पाउडर करके इसका सिर्फ 500 mg का कैप्सूल, 500 mg का कैप्सूल एक टाइम रोजाना दिया जाए। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो 2 टाइम नीम गर्म दूध के साथ और दूध में लौंग दालचीनी डाल ली और जाए। ये बेहतरीन हकीम साहब, ये पत्ता जो आप लेके हाँ, आए हाँ। हैं, इसकी ये क्या पत्ता, अफादियत ये है? देखें, जब फालिज होता है तो फालिज से ना कमजोरी लाक हो जाती है, पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। तो पट्ठों को ताकतवर करने के लिए और फालिज की दवाई के साथ साथ दिमाग के साथ साथ इसका इलाज करते हैं ये पत्ते सारे। और तेल ले लें तिलों का, तिलों का तेल लेके ना उसमें आप ये अक के पत्ते को लेके ना 40-50-100 इसको आप ना उसमें करके तिलों का तेल वो बना लें। तो बनाने के बाद पुन के रख लें, वो तिलों का तेल मालिश करें तो उससे इंशाल्लाह फाका होगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का, और बड़ी ज़बरदस्त नुस्खे। और अगर किसी को फॉलेज हो जाता है या चांसेस हैं तो ये और सारे डिफरेंशिएट भी कर दिया कि राइट का क्या, लेफ्ट का क्या, और जो लेफ्ट वाली चीजें वो आपने राइट के दौरान यूज नहीं करनी, और ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, आप हेडलाइंस मुलाहिजा करें। ब्रेक के बाद और बहुत सारे दिलचस्प मौज़ूआत अभी बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।